Hello everyone, welcome to Synopsis IAS. I am Divyanshi Singh, selected as Deputy Collector in UPPCS 2020. Also, I have secured All India Rank 726 in UPSC Civil Services Examination. इस लेक्चर में हम कवर करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस में देर इज़ ए अंडर बायलेटरल रिलेशंस विल टॉक अबाउट इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस. Right, so this lecture is part of मेंस क्लासरूम प्रोग्राम एट सिनॉप्सिस IAS. इसके अलावा जो भी कोर्सेज अवेलेबल हैं सिनॉप्सिस IAS पे लाइक मेंस क्लास रूम प्रोग्राम, स्पेशल कोर्सेज फॉर मेंस एंड प्रीलिम्स, राइट, फाउंडेशन कोर्सेज, ऑप्शनल कोर्सेज दैट यू कैन गेट टू नो बाय विजिटिंग द वेबसाइट synopsisis.in. सो यहाँ पर आपको इन सारे कोर्सेज के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, सो यू कैन एनी टाइम विजिट इट. Moving on with the lecture. So India-Australia relations, they have gained significance since the idea of Indian centrality in the Indo-Pacific has emerged, right? So we'll talk about that. So what all are the areas we'll talk about? First of all, the Indo-Pacific India-Australia relations. So what is the background? What are the areas of cooperation? What are the areas of cooperation between India and Australia, right? At what levels we see engagement between India and Australia? Then what is the potential of this relationship between India and Australia? We'll talk about that. Then what are the recent initiatives that are being taken, right? So recently a virtual summit was held between India and Australia. So in that several initiatives were taken. So we'll talk about those recent initiatives. And lastly, we'll talk about the challenges in the relationship, right? There are several issues, several challenges in the relationship between both the two countries, right? And then we'll talk about the way forward. What can be the possible way forward? सो अगर हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन की बात करें, सो बोथ द कंट्रीज दे शेयर अ कॉर्डियल रिलेशनशिप, राइट, विद ईच अदर. देयर आर सेवरल डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ कोऑपरेशन. अगर हम बात करें इकोनॉमिक सेक्टर में, सो देर इज इंक्रीज कोऑपरेशन इन बायलेटरल ट्रेड, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस है, राइट, इन द रीजन, इन स्पेसिफिकली मेरीटाइम कोऑपरेशन में, इन द इंडो पैसिफिक, इंक्रीजिंग असर्शन ऑफ चाइना. सो दैट हैज़ ब्रॉट द टू कंट्रीज टुगेदर, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. Then there are several people-to-people relationship between both the countries. Several Indian workers, IT workers working over there, right? Students is enrolled in their universities, so student exchange programs are also there, right? And then now the global momentum is shifting towards Indo-Pacific region. So again, it is imperative for both the nations to actually have a strong relationship, have a strong bond, right? So so that can be the good intro where you talk about different sectors of cooperation, right? So that you should know. उसके अलावा अब यहाँ पर recent summit हुई थी, virtual summit between India and Australia, राइट, ये वर्चुअल बायलेटरल समिट थी, रिसेंटली इट वाज हेल्ड. सो व्हाट वर द आउटकम्स ऑफ दैट समिट, राइट? उस समिट के क्या आउटकम्स थे? पहली चीज़, जो भी दोनों कंट्रीज़ के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, राइट, सो बोथ द कंट्रीज शेयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्टेटस. सो दिस स्टेटस वॉज एलिवेटेड टू द स्टेटस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. सो जो पार्टनरशिप है उसका लेवल एलिवेट कर दिया गया फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, राइट? उसके अलावा अब बोथ द कंट्रीज विल हैव 2+2 डायलॉग. सो देयर इज एन एलिवेटेड 2+2 डायलॉग मैकेनिज्म. सो अगर हम 2+2 डायलॉग मैकेनिज्म की बात करें, सो इट इज़ द
हाईएस्ट, अगर 2+2 डायलॉग मैकेनिज्म की बात करें, सो इट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशनल एंगेजमेंट, हाईएस्ट लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशनल engagement between two countries, right, where your finance ministers and defense ministers of the two countries interact. So यहाँ पर now there would be 2+2 dialogue mechanism would be there, which India presently have with countries like USA, with Japan, but now India will also have it with ऑस्ट्रेलिया. अभी तक सेक्रेटरी लेवल पे मीटिंग्स होती थी, अब फाइनेंस मिनिस्टर्स और डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच में मीटिंग्स होंगी, एंड दोज मीटिंग्स विल बी हेल्ड रेगुलरली. एवरी 2 years पे ये मीटिंग होगी दोनों कंट्रीज़ के बीच में, राइट. उसके अलावा और क्या इनिशिएटिव्स लिए गए? एन MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इज साइंड बिटवीन द टू कंट्रीज फॉर इंक्रीज्ड कोऑपरेशन. MOU between two countries for increased cooperation in the field of mining and processing of critical and strategic minerals. So यहाँ पे MOU साइन हुआ है फॉर इंक्रीज कोऑपरेशन इन द स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की माइनिंग में, प्रोसेसिंग में, राइट. उसके अलावा दोनों कंट्रीज के बीच में एक म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट इज ऑल्सो साइंड. म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट इज ऑल्सो साइंड. It's signed between the two countries, right? And both the countries have shared vision for maritime security. Both the countries have shared vision for maritime security, right? So we know that both the countries have shared interest with respect to the Indo-Pacific, that it should be free, inclusive, right? And what we are seeing in the region, there is growing assertion of China, right? Growing assertion of China, so that is a threat for both Australia also and India also. So both the like-minded countries want to cooperate, and both have common interest when it comes to maritime cooperation, particularly in the Indo-Pacific region, right? So these are some of the key outcomes of the recent virtual summit which was held recently. अब अगर हम बात करें कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया बायलेटरल रिलेशंस में what are the in what all fields we are seeing engagements, in what all sectors we can see engagement between both the two countries, right? तो अगर हम इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करें, राइट, इफ यू टॉक अबाउट इकोनॉमिक रिलेशंस, सो यहाँ पर बोथ द कंट्रीज के बीच में जो बायलेटरल ट्रेड है, बायलेटरल ट्रेड एज ऑफ 2018-19, दैट इज अप टू द लेवल ऑफ $30 billion. सो बायलेटरल रिलेशंस कितने का जो डेटा है यहाँ पे, दैट इज ऑफ $30 billion, एंड दैट इज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, राइट. इंडिया के जो मेन एक्सपोर्ट है, अगर आप एक्सपोर्ट बास्केट देखते हो इंडिया की टू ऑस्ट्रेलिया, सो इट इंक्लूड्स पैसेंजर मोटर व्हीकल, मशीनरी, जेम्स एंड ज्वेलरी, पर्ल्स, राइट. और इंडिया की अगर आप इम्पोर्ट बास्केट की बात करो, सो इम्पोर्ट बास्केट इंक्लूड्स कोल, वूल, फर्टिलाइजर्स, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स लाइक यूरेनियम, एजुकेशन रिलेटेड सर्विसेज, ये इंडिया इम्पोर्ट करता है, राइट. एंड बोथ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैव अ जॉइंट मिनिस्टेरियल कमीशन जो कि इस्टेब्लिश की गई थी 1989 में, सो दैट गवर्नमेंट और बिजनेस लेवल पे इंटरैक्ट किया जा सके ऑन ब्रॉड इशूज़ ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट. सो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के इश्यूज़ पर ये जॉइंट मिनिस्टेरियल कमीशन बनाया गया था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इन 1989, सो दैट देयर कैन बी मोर गवर्नमेंट एंड बिजनेस लेवल एंगेजमेंट्स बिटवीन बोथ द कंट्रीज विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना है उसके लिए, राइट. सो दिस यू शुड बी नोइंग व्हेन इट कम्स टू ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप. उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की एक स्ट्रैटेजी भी है, इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी, विच ऑल्सो इंक्लूड्स इंडिया एज अ मेजर पार्टनर, राइट. सो एंड इंडिया इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी टू 2035. सो दिस एंड इंडिया इकोनॉमिक strategy
to 2035. So it is a vision document, right? It is a vision document to shape India Australia का bilateral trade, right? So it is a document that is to ensure that there is more deeper engagement between both the countries, right? Then also both the countries are engaging and discussing a comprehensive economic cooperation agreement, right? Then there is also an initiative, supply chain resilience initiative. So ये जो supply chain resilience initiative है, that is initiated by countries like India, Japan, Australia, right? Where what you are trying to do, you are trying to diversify your trade partners. So diversify trade partners, right, in the supply chain which are trustable, so that there is increased cooperation in terms of goods and services. सोर्स कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी सोर्स कर सकते हैं, राइट? सो दैट कैन बी इंक्रीज्ड. सो ये स्ट्रेटेजिक सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव वाज आल्सो साइंड, राइट? इसके अलावा अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप या फिर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, सो वी ऑब्वियसली नो दैट China's significance, China's influence is increasing. So both the countries have common security interest, right? Common defense interest, right? Security interest. So अगर हम strategic interest में Quad की बात करें, so Quad is actually the result of shared vision with respect to security, cooperation in the region. So China का influence बढ़ रहा है. So to counter that, Quad is seen as a grouping in the region of Australia, India, Japan and America. So Quad was initiated by Japan's Prime Minister Shinzo Abe and largely in response to China's growing power and influence. So Australia also joined the dialogue in 2017. Now all the countries are actually also participating in Malabar exercise, right? And it is seen as a major grouping to counter Chinese increasing influence and Chinese increasing aggression in the Indo-Pacific, right? In the South China Sea particularly. उसके अलावा अगर हम डिफेंस रिलेशन की बात करें बिटवीन बोथ द कंट्रीज, इफ वी टॉक अबाउट डिफेंस रिलेशनशिप, so both the countries, both India and Australia have shared interest, right? When it comes to the Indo-Pacific, both the countries have shared interest, both want freedom of navigation, both want Indian Ocean, Indo-Pacific to be free, inclusive, right? And there should be freedom of navigation, right? So Australia जो है यहाँ पे इंडिया का क्रिटिकल रोल रिकॉग्नाइज करती है करता है इन द Indo-Pacific, right? India is a net security provider in the Indian Ocean, and India is responsible for a safe, secure, stable and peaceful Indian Ocean region, right? So that is why there are several exercises also between India and Australia. अगर आप इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बात करो, so एक एक्सरसाइज होती है ऑजी इंडेक्स. सो ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में होती है नेवल एक्सरसाइज. उसके अलावा ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज होती है. सो ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आर्मी एक्सरसाइज है, राइट? उसके अलावा एक पिच ब्लैक एक्सरसाइज है, पिच ब्लैक एक्सरसाइज. सो ये एक्सरसाइज होती है बिटवीन एयरफोर्स ऑफ द टू कंट्रीज. उसके अलावा मालाबार एक्सरसाइज होती है between the two countries, and then there is also a logistical support agreement between the two countries, right? So there are several areas of cooperation. उसके अलावा both countries also have civil nuclear cooperation agreement which was signed in 2014, right? And it provides framework for substantial new trade in energy between Australia and India. So यहाँ पर ये डील इंश्योर करती है कि जो भी ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम माइनिंग कंपनीज हैं दैट विल सप्लाई ऑस्ट्रेलियन यूरेनियम फॉर इंडिया. सो इंडिया के सिविल न्यूक्लियर यूज़ के लिए यूरेनियम जो है वो सप्लाई करें.
यूरेनियम के कई सारे रिजर्व्स जो है रिसोर्सेज रिजर्व्स हमें ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम की सप्लाई करना इन इंडिया। सो दिस सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट ये कब साइन किया गया था? 2014 में साइन किया गया था, राइट। उसके अलावा बिटवीन बोथ द कंट्रीज देयर इज काउंसिलर कोऑपरेशन, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी वाज साइंड, राइट, एंड एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन बोथ द कंट्रीज। सो अगर कोई जैसे कि नीरव मोदी जैसे ऑफेंडर्स हैं, राइट, इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं, सो दे आर लिविंग द कंट्री, राइट, दीज आर लिविंग द कंट्रीज, तो ऑब्वियसली उनके एक्स्ट्राडिशन के लिए बोथ द कंट्रीज हैव ऑलरेडी साइंड अ ट्रीटी। अगर इस टाइप के लोग वहाँ भाग करके जाते हैं, राइट, जिनको जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स है, फ्यूगिटिव्स हैं, राइट, सो बोथ द कंट्रीज हैव ऑल्सो ट्रीटी विद रिस्पेक्ट टू द extradition. Then there is increased global cooperation between the two countries. There is increased global cooperation between the two countries. So we have already talked about supply chain resilience initiative. We have talked about free, open, inclusive Indo-Pacific region. We have talked about Quad, right? Then also India का जो India ने एक forum बनाया for India Indo-Pacific Island cooperation. So यहाँ पर both the countries actually strive for more cooperation in South Pacific, right? So there is increased global cooperation. देन अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बात करें, सो देर इज ऑस्ट्रेलिया इंडिया स्ट्रेटेजिक रिसर्च फंड, ऑस्ट्रेलिया इंडिया स्ट्रेटेजिक रिसर्च फंड। सो सेवरल रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो है दे आर बीइंग फंडेड अंडर दिस फंड, राइट। सो ये इस्टेब्लिश किया गया था 2006 में, एंड रिसेंटली डेवलपिंग कोविड-19 वैक्सीन एंड सेवरल प्रोजेक्ट्स ऑन फॉर रिसर्च ऑन कोविड-19. सो यहाँ पर बोथ द कंट्रीज आर एंगेजिंग विद ईच अदर, आर कोऑपरेटिंग विद ईच अदर, राइट. उसके अलावा साइबर टेक्नोलॉजी में भी देयर इज इंक्रीज्ड कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज, राइट. सो दीज आर द एरियाज ऑफ कोऑपरेशन. उसके अलावा हमारा पीपल टू पीपल कोऑपरेशन इज ऑल्सो देयर. if we talk about people to people cooperation, right, so around 7 lakh Indian diaspora, 7 lakh Indian diaspora is staying there, working there as IT professionals. So again, that is a very important factor in the bilateral relations between the two countries. Then several Indian students, करीब 1 lakh Indian students are studying in Australia. So again, that plays a important role. So there is increased people to people engagement also between both the countries. उसके अलावा बाकी आपको कई सारे एरियाज़ में कोऑपरेशन मिलेगा. जैसे मल्टीलेटरल फोरम में जाओ, सो मल्टीलेटरल फोरम में कॉमनवेल्थ हो गया, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, राइट. सो इन दीज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स, मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स, देयर इज इंक्रीजिंग कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज. देन देयर आर अदर फील्ड्स लाइक काउंटर टेररिज्म है, डी रेडिकलाइजेशन है, सो उसमें कोऑपरेशन. Then both the countries also have shared vision. Both the countries have shared vision on Afghanistan, right? As Afghanistan में तालिबान ने पूरा कैप्चर कर लिया है, so both the countries have shared and common vision on Afghanistan, right? Then Australia also support India's permanent membership to UNSC, right? उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट की वजह से इंडिया also got membership to MTCR, Missile Technology Control Regime, right. Then both the countries also support the idea of reformed multilateralism, right. And then उसके अलावा जो भी कुछ इंडिया लेड इनिशिएटिव्स हैं, there are certain India led initiatives. So Australia has also promised that there would be supporting these projects. So जैसे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इट इज़ एन इंडिया लेड इनिशिएटिव. उसके अलावा कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर. So these are the projects which are India led. So Australia has committed support for these projects, right. So there is again increased cooperation in the field of disaster management,
in the field of sustainable energy, clean energy, sustainable development, right? So there is cooperation in several fronts, right? So we can talk about that. उसके अलावा what are the areas जहाँ पे अभी भी potential है where both the countries can actually engage? So water is one area, right? Australia and India faces similar challenges with respect to water resource management. So यहाँ पे कैसे water quality से को बेहतर किया जा सकता है and all, उस पर research वगैरह साथ में की जा सकती है, right? Then energy में we have seen that Australia is a major partner with respect to energy sector की अगर हम बात करें. इंडिया इम्पोर्ट करता है वहाँ से कोल, राइट? सिडनी में देर आर कोल माइंस लोकेटेड, सो वहाँ से इंडिया कोल भी इम्पोर्ट करता है. देन इंडिया यूरेनियम इम्पोर्ट करता है फॉर सिविल न्यूक्लियर पर्पस. सो अगेन ऑस्ट्रेलिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्टनर. देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात कर चुके हैं कि दैट इज़ एन एरिया ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज. अब अगर हम बात करें कि व्हाट आर द चैलेंजेस, दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप में क्या चैलेंजेस हैं, व्हाट आर द की पॉइंट्स ऑफ कि जिसकी वजह से देयर आर स्टिल जो भी हम पोटेंशियल है इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन का वो अचीव नहीं कर पाए हैं. तो सबसे पहला तो वन इज़ द चाइना. सो इंक्रीज्ड इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, राइट? सो अगेन रूल बेस्ड ऑर्डर में चाइना विश्वास नहीं रखता, एंड देन चाइना का इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस इज़ अ मेजर इशू इन द रीजन. एंड वी हैव सीन दैट अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ आप ट्रेड की बात करो, सो इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, राइट? तो ये एक कंसर्न है दोनों के बीच में, राइट? कि चाइना का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है. इफ़ वी टॉक अबाउट कि इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस इन ऑस्ट्रेलिया, सो दैट इज़ वेरी हाई विद रिस्पेक्ट टू, एंड दैट इज़ नॉट गुड विद रिस्पेक्ट टू आवर रिलेशनशिप. देन इंडिया का भी इमीडिएट लैंड नेबर है चाइना, सो इंडिया कैन नॉट एक्चुअली हैव एन एंटेगनिस्टिक रिलेशन विद चाइना. तो अगेन एंड देन क्वाड को देखा जाता है एज अ ग्रुपिंग अगेंस्ट चाइना, एंड इंडिया हैज़ मेंबरशिप टू दैट. अगेन दैट कैन बी अ पोजिशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. So that is seen. So that's why India is also suspicious. India also initially didn't wanted Australia to participate in the Malabar exercise, so that ये जो पूरा grouping है, it is not termed as anti-China. But then we found that Quad में all the 4 countries are participant, and then it is also seen as a measure to actually control China's increasing influence, right? Then what are other areas? अगर हम इकोनॉमिक एरिया में जाएँ, what are the economic areas में challenges between the two countries? So जो comprehensive economic partnership agreement है, so इस पे अभी तक कुछ बेनिफिशियल सामने नहीं आया है. डिस्पाइट 9 राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट अभी तक कुछ भी सब्सटैंशियल अचीव नहीं किया गया है. सो दैट इज़ वन एरिया ऑफ कंसर्न. उसके अलावा अगर हम बात करें कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में RCEP, जो RCEP है, इंडिया हैज़ विड्रॉन फ्रॉम रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, राइट? RCEP से इंडिया ने विड्रॉ किया. इंडिया सेज दैट अगर हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में जाते हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स में जाते हैं, सो अगर ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड कंट्री से जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, वो इंडियन मार्केट्स में फ्लड होंगे. सो इंडियन डेयरी या इंडियन एग्रीकल्चर के लिए इट विल नॉट बी गुड, राइट? सो इंडिया शोड दैट रेजिस्टेंस फॉर प्रोवाइडिंग मार्केट एक्सेस टू एग्रीकल्चरल एंड डेयरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. सो दैट बिकेम अ बोन ऑफ कंटेंशन, राइट? उसके अलावा वी हैव सीन दैट ऑस्ट्रेलिया का हेवीली डिपेंडेंस ऑन चाइना, दैट इज़ अनदर इशू, राइट? देन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो सेज कि जो टेरिफ है, इंडिया प्लेसेस हायर टेरिफ ऑन एग्रीकल्चरल एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, सो ये टेरिफ रिलेटेड इशू है. देन इंडिया कहता है कि ऑस्ट्रेलिया नॉन टेरिफ बैरियर्स जो है वो इंडियन प्रोडक्ट्स पे लगाता है. सो दैट नॉन टेरिफ बैरियर्स फाइटोसैनिटरी मेजर्स के फॉर्म में वो ऑस्ट्रेलिया लगाता है. सो दैट इज़ अ मेजर ऑफ कंसर्न. उसके अलावा जो इंडियन वर्कर्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, दे फेस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, राइट? सो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज ऑल्सो एन इशू बिटवीन द टू कंट्रीज, राइट? सो दे बिलीव इन वाइट सुपरमेसी एंड रेसिज्म इज स्टिल फाउंड टू बी हाई देयर, राइट? उसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या इश्यूज़ हैं, तो और इश्यूज़ भी हैं. अगर आप
इंडिया जो है वीज़ा इश्यूज़ आर देयर, इंडिया वांट्स की जो भी वहाँ पे वीज़ा रूल्स हैं उनमें रिफॉर्म लाया जाए, इंडिया को ज़्यादा रिलैक्सेशन दिया जाए ताकि ज़्यादा वर्कर्स जो है वो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पा सकें. बट देन ऑस्ट्रेलिया इज़ नॉट रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ रिफॉर्म्स. तो दैट इज़ नॉट इन फेवर ऑफ इंडियाज IT प्रोफेशनल. तो दैट इज़ अनदर इशू बिटवीन द टू कंट्रीज, राइट. तो अगर हम इश्यूज़ देख लिया, राइट. अब अगर हम बात करें कि व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, कैसे हम कोऑपरेट कर सकते हैं between the two countries. So obviously both the countries need to realize this potential that they have, right. Potential किस terms में, people to people ties में, economic relations में, geostrategic relation partnership में, the potential is there between the two countries and that has to be leveraged, right. So we have to ensure that there is more cooperation. Both the countries have shared interest, have shared values. अगर हम values की बात करें तो democracy, liberty, rule of law, human rights, freedom of speech, इसमें दोनों कंट्रीज बिलीव रखते हैं, राइट. तो हमको since we both have common interest with respect to Indo-Pacific, with respect to maritime cooperation, right, with respect to checking China's increasing assertion in the region, with respect to multipolar world order, with respect to supply chain resilience, right, on counter-terrorism operations, on climate change. So there is a shared vision between both the countries, right. So both the countries should also try to diversify the areas of cooperation, right. जो भी comprehensive economic cooperation agreement है वो अभी तक successful नहीं हुआ है, तो we should be negotiating more so that that agreement can be made successful, right. economic opportunities जो है उनको tap किया जा सके, that is not fully exploited yet. तो उसको fully exploit कैसे करना है, that should be seen, right. उसके अलावा डिफेंस सेक्टर में देयर कैन बी सेवरल इंक्रीज्ड कोऑपरेशन, साइबर सिक्योरिटी में देयर कैन बी इंक्रीज्ड कोऑपरेशन, राइट. सो फ्यूचर मस्ट बी वोवन अराउंड 3 pillars: द इकोनॉमिक रिलेशनशिप, जियो स्ट्रेटेजिक कॉन्ग्रुएंस एंड पीपल टू पीपल टाइज, राइट. सो दैट शुड बी सीन. So this was it for this lecture. Thank you.